नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, find the coefficient of x to the power 11 in the expansion of 1 plus x square whole to the power 4, 1 plus x cube whole to the power 7, and 1 plus x to the power 4 whole to the power 12. Here you have to find the coefficient of x to the power 11 in this expansion. Okay, तो अब इसका सॉल्यूशन है, देखो, find the coefficient of x to the power 11 in the expansion of x 1 plus x square whole to the power 4, 1 plus x cube whole power 7, 1 plus x to the power 4 whole power 12. We need to consider the general term from the expansion of each factor. जैसे 1 plus x square whole to the power 4, the expansion is the sum of the term 4k1 x square whole to the power k1, k1 varying from 0 to 4 क्योंकि यहाँ पे 4 दिया. नेक्स्ट एक्सपांशन 1 plus x cube whole to the power 7 is the term of 7k2 x cube क्योंकि यहाँ पे x cube है whole to the power k2 varying from 0 to 7. नेक्स्ट द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x to the power 4 12 मतलब ये वाली लास्ट टर्म है ना, is the sum of the term 12 k3 x to the power 4 k3 for k3 varying from 0 to 12. The term in the product expansion we will have the form, देखो 4k1 x to the power 2k 2k1, 7k2 x to the power 3k2 and 12k3 x to the power 4k3, that is equal to 4c1 7k2 12k3 x to the power 2k1 plus 3k2 plus 4k3. We are looking for the coefficient of x to the power 11, and we are looking for the coefficient of x to the power 11. So we need to find the non-negative integer solution k1 k2 k3 to the equation 2k1 plus 3k2 plus 4k3 equal to 11. क्योंकि अपने को x to the power 11 है ना, x to the power 11 को इसके साथ कंपेयर करेंगे, x to the power 2k1 plus 3k2 plus 4k3, मतलब वो जो एक्सपोनेंट है 2k1 plus 3k2 plus 4k3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11. सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट k1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 0 to 4, k2 0 to 7 and k3 is 0 to 12. We can systematically find the solution by interacting through possible values for k3 as it has the large coefficient and thus the most restricted range. Possible values for k3 is 4 k3 क्या है less or equal to 11. Here is 4 k3 है ना, k1 k2 in general अपन ने 0. The possible values of k3 4 k3 is less or equal to क्या हो जाएगा 11. So k3 can only be 0 1 और 2. तो केस नंबर 1 k3 इक्वल टू 0 लेंगे, तो k3 इक्वल टू 0 लिया तो 2k1 प्लस 3 k2 क्या हो जाएगा 11. k1 कहाँ से कहाँ तक है 0 to 4 है, k2 0 to 7 है. सो k2 इक्वल टू 0, तो k2 इक्वल टू 0 लिया तो 2k1 इक्वल टू 11, नो इंटीजर सॉल्यूशन फॉर k1. k2 इक्वल टू 1 लिया तो 2k1 प्लस 3 इक्वल टू 11, तो 2k1 इक्वल टू 8 k1 इक्वल टू 4. दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन. मतलब पॉसिबिलिटी क्या बन गई k1 k2 k3 4 1 0. मतलब द कोएफिशिएंट फॉर दिस टर्म इज 4 4 7 1 एंड 12 0. ये कहाँ से, यहाँ से, ये देखो 4k1 7k2 12k3 बाइनोमियल एक्सपेंशन, मतलब ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 4 4 4c4 है ना, 7 1 7c4 12 0. तो 4 4 कितना होता है 1 है ना, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखो ना, है ना, इसको ये फॉर्मूला याद रखेंगे है ना, बाइनोमियल में ना क्या एन आर है. सो दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे जब 4 4 है तो 4 4 लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 4. सो दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दिस इज 1. नेक्स्ट 7 c1 है ना, 7 c1 7 आएगा, 12 0 1 आएगा, फिर से 7. जीरो फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है. ओके, तो k2 इक्वल टू 2, so 2k1 plus 6 equal to 11, मतलब 2k1 equal to 5. No integer solution, we want integer solution. Okay, k1, so k2 equal to क्या लेना पड़ेगा 3, तो k1 equal to क्या आएगा 1. so this is a valid solution. मतलब पॉसिबिलिटी क्या बन गई 1 3 0. मतलब द कोएफिशिएंट फॉर दिस टर्म इज क्या हो जाएगा 4 1 7 c3 और 12 0. मतलब 4 इंटू 7 c3 का 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 35 इंटू 1 मतलब 140. नेक्स्ट k2 इक्वल टू 4 लेंगे, क्योंकि k2 कहाँ से कहाँ तक है, मतलब k2 इक्वल टू लेंगे 4 एंड k1 यहाँ पे 0 to 4 है, k2 0 to 7, तो 2k1 प्लस 12 इक्वल टू 11, मतलब 2k1 इक्वल टू -1. सो नो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन फॉर k1. नेगेटिव आ गया ना, नो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन. सो एनी हाइयर फॉर k2 के आगे जितने भी लेंगे
will also result negative value of k1. तो k2 के 4 के आगे नहीं जाएंगे, ओके है ना। मतलब पॉसिबिलिटी क्या बन गई, k1 इक्वल टू 1 एक पॉसिबिलिटी बना, उसके बाद k2 इक्वल टू 3, दिस इज सेकंड पॉसिबिलिटी, जिसका एक का एक आंसर 7 कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म और एक है 140, सही है। नेक्स्ट k3 इक्वल टू 1 लेंगे, द इक्वेशन बिकम्स 2k1 प्लस 3k2 प्लस 4 इक्वल टू 11। सो 2k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 7, ये कहाँ से आया इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन ना, ये इक्वेशन जो पॉसिबिलिटी बनती है मतलब किसकी, x टू द पावर 11 करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द, ये इक्वेशन से उसमें k3 इक्वल टू 1 पुट कर दें, तो ये इक्वेशन निकल के आ गया 2k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 7। तो k1 वैरिंग फ्रॉम 0 टू 4, k2 वैरिंग फ्रॉम 0 टू 7, फिर से k2 इक्वल टू 0 लेंगे, k1 फाइंड करेंगे, तो 2k1 7, नो इंटीजर सॉल्यूशन, दिस इज नॉट वैलिड। k1 इक्वल टू 1 लिया तो k2 k1 क्या आ गया, k2 इक्वल टू 1, k1 इक्वल टू 2, दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन, मतलब 2 1 1, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म क्या हो जाएगा, 4c2 क्योंकि 2 है, 7c1 और 12c2, दिस इज k1 k2 k3 है ना, 12c1 मतलब 6 इंटू 7 इंटू 12, 504। नेक्स्ट k2 इक्वल टू 2, सो 2k1 प्लस 6 इक्वल टू 7, मतलब 2k1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अगेन नो इंटीजर सॉल्यूशन, मतलब k2 इक्वल टू 2 को छोड़ देंगे, k3 इक्वल टू t, तो 2k1 इक्वल टू माइनस 2 नेगेटिव, नो नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन फॉर k1, इसके आगे नहीं जाएंगे, k2 इक्वल टू 3 के आगे, सही है। नेक्स्ट k3 इक्वल टू 2, केस नंबर 3 है ना। केस नंबर 1 में अपन ने k3 इक्वल टू क्या लिया था 0, k3 इक्वल टू 1 और k3 इक्वल टू 2। अभी k3 इक्वल टू 2 पुट कर दिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2k1 प्लस 3k2 इक्वल टू 3, k1 फिर से वही 0 टू 4, k2 0 टू 7 है, वही प्रोसीजर, k2 इक्वल टू 0 पुट किया तो k1 क्या था 3/2 आता, मतलब नो इंटीजर सॉल्यूशन, नॉट वैलिड। k2 इक्वल टू 1 पुट किया तो k1 क्या था 0, दिस इज अ वैलिड सॉल्यूशन, मतलब 0 1 2, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स क्या हो गया 4c0 क्योंकि 0 है k1, 7c1 क्योंकि 1 है k2, 12c2 मतलब 1 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 2, मतलब दिस इज 462। इफ k2 इक्वल टू 2 लिया तो k1 क्या आता नेगेटिव, तो नो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन, तो इंटीजर नहीं है और नेगेटिव भी है, उसको उसकी दिस इज नॉट वैलिड। We have found all possible combination k1, k2, k3 that satisfy the condition. The total coefficient of x to the power 11 is the sum of the coefficients from this combination. The total coefficient 7 plus 140 plus 504 plus 462, ये पूरे इसका सम, तो पूरे इसका सम कर दिया तो क्या था आंसर इज 1113, है ना। दिस इज द टोटल कोएफिशिएंट, मींस वी हियर वी हैव टू फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 11, मतलब x to the कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 11 इज अ 1113, दिस इज अ फाइनल आंसर। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन दिया है तो आप उसको टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,